Hello everyone, I welcome you all for our course on data science and machine learning with Python. And I am really glad that you all has opted this course in a direction to learn Python and machine learning. This field, data science, machine learning, deep learning, has a great importance now. Okay. And I know that you guys have some basic idea related to data science. It may be either you are working in this field from some time, or either you are new to this field but you have something in your mind related to it, and you connected with me, you joined with me to avail this course, and the goal is to learn the concepts related to Python and machine learning. And these concepts are obviously related to data science because there is a complete intersection of these fields: data science, machine learning and deep learning comes under artificial intelligence, AI. So right now, artificial intelligence is something which has created a big boom. What's the reason? Sir, the reason is we are automating the task. Now, machines are becoming intelligent, and machines are being capable enough to perform any kind of task with much more precision and accuracy than humans do. Okay. So, sir, how we are going to save our jobs from it? Because this is one of the question. Sir, if AI is going to be used in each and every field, how we are going to preserve our job? That's the question. And there is a debate every time. I have seen there is a debate. AI, because of AI, most of the people are losing jobs. Yeah, fine, that's correct, and they will ahead also in 2024 and ahead. They will be doing this thing because if we are having hot topics throughout the world, artificial intelligence is something which is included. Whether we are in a war, countries are in a war, okay, there are some developments, okay, artificial intelligence is also, you are going to see one of the column in every day to day life in a newspaper article. AI is something which you cannot ignore. Okay. So we we all are here to know what actually it is, by the means of programming, by the means of data science, machine learning. That's what we want to apply. The point is application. Sir, if we know how to apply this AI, then can we save our job? Can we switch? We want to transition our career in this field. Can we save ourselves if we have a knowledge of these things which we are going to learn in this 3 months, 3 months, 4 months? Okay. Can we save ourselves by learning these concepts? Okay, yes, because we have to tune ourselves according to the needs, current needs of industry. Then only we can be save ourselves. If the industry doesn't require your outdated or traditional stuff, you are not going to survive. Definitely we have to change, we have to learn
what are the recent advancements? So right now the recent advancements are in the field of artificial intelligence, AI. So we have to learn the programming, we have to learn the basic foundations of data science, which includes maths. Okay, then we are going to learn the algorithms also, which are being applied to produce some results. Okay, so you might be thinking, sir, you have shared a blank paper with us right now, nothing is written here. So right now I'm assuming that you all guys are blank. Okay, and being as a teacher, it's my duty to fill this blank paper. So my effort for this complete 3 to 4 months will be to fill this blank, and whatever be the goals you have taken to achieve, I want to make you guys achieve your goals by learning this AI. Okay, so in this course I have written your data science and machine learning with Python, not using Python, with Python. That means we have to learn a Python, basic Python, applied Python. Then we are going to learn the maths which is required for data science and machine learning. And then we are going to proceed ahead with the algorithms, techniques, concepts, whatever you will say, will include in your machine learning. So this complete course has been divided into your three modules. That means data science and machine learning with Python will be having three modules. In module number 1, we are going to talk about Python programming. Okay. In this module, as you have already seen, I'm going to talk about Python programming concepts plus applied Python, which we are going to use for data science and machine learning. That means I'm going to talk here about the libraries which are applicable to solve the problems of data science and machine learning. That's what we are going to do first. Second, my module says related to your maths, that is your module number 2. Okay, that is the mathematical portion, because without maths you can't achieve anything. Okay, fine. So we are going to see maths, which includes linear algebra, statistics, probability, information theory, calculus, and your rest of the mathematical portions. All right. So that's what we are going to do in this particular module number 2. Okay. Then, as we proceed ahead for the module number 3, once you get finished with the foundations, that means you will be able to apply Python, you are able to understand the mathematical concepts, what's happening with the data. That's what math says. Okay. Then you can proceed ahead with the machine learning algorithms. Okay. This is how we are going to approach it. All right. So the question which is in our mind is, sir, we want to transition, sir. We want to transition. Or if we are already present in this field, sir, we want to grab a job, sir. हमें अच्छी जॉब चाहिए सर. कैसे मिलेगी सर वो अच्छी जॉब? हम इंटरव्यू दे रहे हैं. ओके, दे दिए, अभी और फेस करेंगे. ओके, एंड सर वी want to be ready, prepared, so that we can crack अ हाई पैकेज जॉब. ये हमारा एक गोल है. ठीक है. तो यहाँ मेरे सामने जो चैलेंज है आप लोगों के साथ, वो ये है, आई एम हैविंग टू काइंड ऑफ पीपल हियर. वन इज द ट्रांजिशनिंग पर्सन्स. Okay, those who want to get into this field and want to learn, and then they are going to apply for the job.
एक वो है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, दोनों the basics of data science and machine learning, they are already applying for the job, trying trying hard to get the job, और यदि हैं जॉब भी कर रहे हैं, यदि मान लो इस फील्ड में अब उनको अपग्रेड होना है, ओके, तो सर क्या होगा, कैसे कर पाएंगे इन चीजों को, ट्रांजिशनिंग हमारे लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं है? देखिए, अ, ये बात है, मैं यदि अपना बोलूं, so I started with computer science and engineering. Okay, I am a person of this field, so anything related to computers, machine, that's not complicated for me because I already did programming, coding, ये मुझे पहले से ही करते आ रहा हूँ, सालों हो गया. Okay, but those people थोड़ा सा वो in touch में नहीं थे, they are from different industry. Okay, whether it is like your construction, mechanical, chemical, etc., तो वो इतना used to नहीं थे प्रोग्रामिंग के. ओके, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सर हमें वी वांट टू गो टू थ्रू दिस पर्टिकुलर फील्ड, सो हमें सीखना पड़ेगा, या हमने पहले भी थोड़ा बहुत सीखा है बट अब उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. ओके, देन हम इसको यूज करना, एप्लीकेशन इसको करना, ओके, टू मेक सम गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स सो दैट वी कैन शो टू द इंडस्ट्री दैट यस वी आर एक्सपर्ट्स. ओके, एक्सपर्ट तो देखिए मैं आपको बोलूं, टू बी वेरी फ्रैंक, इट विल टेक टाइम. It's not like that you can think over a data in a one go itself. It will take time. Okay, I've been practicing from a long time. Okay, and I've done many projects. Few people are here listening to me जो already मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं. Okay, they know, they have done the projects with me. The quality of the projects and the demand right now with the industry is somewhat you need to make a synchronization with that. Okay, which is a complicated at this particular moment, but अभी आपको सिखाएं हम, आपका फाउंडेशंस तैयार करें, आपको इस स्टेट पे लेकर आए कि आप जो है जो सोच रहे हो इस फील्ड में आने का वो आप कर सकें. ओके, तो ट्रांजिशनिंग वाली बात है. फाइन, कैसे कर पाएंगे हम ट्रांजिशनिंग? नाउ लेट मी शेयर यू माय एंटायर स्क्रीन टू help you in understanding what things you need to keep in mind to transition in this particular field. All right. So, if you want to transition into data science, okay, from any of the field you belong, you need to understand the basics. Okay, basic means solid understanding of details related to data science. That means you need to identify what are the requirements of this field. भाई मैं किसी जगह किसी फील्ड में आना चाह रहा हूं तो पहले मैं उसका बेसिक तो समझू, उसमें चाहिए क्या मुझे, व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर. तो ये जो आपका कोर्स है ना, ये उसी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में है. Okay, that what you require if you want to transition into the field. That's why I put Python, I put maths, then I put machine learning. So these are the key topics which you require. Okay, ये सीखना पड़ेगा आपको. फंडामेंटल्स की बात करी है तो प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू सी, तो हमारे कोर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग है. देयर आर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसका आप यूज कर सकते हो. वन इज द पाइथन, वन इज आर. सो पाइथन इज समथिंग जिसको हम प्रेफरेंस देंगे, ओके, फॉर आवर इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस. आर हम नहीं कर रहे हैं. ओके, आर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, खास करके स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के लिए आर जो है वो यूज होता है. बट पाइथन इज फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग. ओके, बिकॉज हियर मेनी लाइब्रेरीज आर प्रेजेंट. ओके, तो पूरा काम अभी पाइथन पर होता है. ऑल राइट, सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग अपॉन पाइथन. तो अभी हमें क्या समझ में आया, सर हमें इस फील्ड में ट्रांजिशन करना है, तो ट्रांजिशन करने के लिए आई नीड टू कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड. और डेटा कलेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे तैयारी करनी है. सो यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, अभी ये समझ में आया. देन सर व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू. ओके, एक बार मुझे प्रोग्रामिंग आ गया,
आई एम एबल टू यूज द लाइब्रेरीज विच आर प्रेजेंट इन द पाइथन, यही मेरा जो है गोल है। आई विल बी टीचिंग यू द बेसिक्स ऑफ पाइथन, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड पाइथन। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो अप्लाइड पाइथन में यू आर हैविंग सम टूल्स एंड द लाइब्रेरीज विच यू कैन अप्लाई ओवर द डेटा। तो भाई यहां बात ये आई है कि सर हमें इस फील्ड में वर्क करना पड़ेगा डेटा पे। ओके, so whether you are being a part of any of the industry or organization, the point is very much clear that you are been working over the data। ओके, कोई भी इंडस्ट्री हो, डेटा तो होगा वहां पे उनका, वो रखते हैं, सब रख रहे हैं आप। लेकिन यहां पर जो है स्पेसिफिकली डेटा आपका जो है इट विल वर्क एज अ ट्रेजर। ट्रेजर है ये, सोना है ये इस फील्ड में, डेटा। ओके, एंड यू हैव टू वर्क ओवर द डेटा। तो डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, कुछ भी रॉ फैक्ट्स कुछ भी दे दो आप, आड़ा टेढ़ा जो भी है, बस फॉर एग्जांपल कोई शीट दे दी आपको, एक सीएसवी फाइल दे दी, और कुछ भी इसमें दे दिया, एंट्रीज करके दे दिया आपको, ठीक है, रॉ डेटा। अब इस फील्ड में हम क्यों आए, क्या हमारा कारण बन रहा है, क्या कर लेंगे हम? तो देखिए भाई क्या है, राइट नाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला ट्रेजर क्यों है भाई। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, हर कोई डेटा मेंटेन करके चल रहा है। ओके, और हम खुद ये जानते हैं, राइट नाउ ऑल्सो यू आर बीन अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑल्सो, तो ये भी एक डेटा बन रहा है ना, एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, पूरी क्लास चल रही है, इसका भी डेटा बन रहा है। ओके, सोशल मीडिया पर हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, ये सब क्या डेटा ही तो है। अब कंपनीज क्या चाहती हैं, या इंडस्ट्रीज क्या चाहती हैं, या सिर्फ कंपनी इंडस्ट्री की बात नहीं करें, आप ये देखिए कोई भी फील्ड ले लो, वो सब ये चाहते हैं वी आर गोइंग टू एनालाइज, इंटरप्रेट दिस डेटा टू गेट सम रिजल्ट्स। मुझे कुछ जानकारी चाहिए, इससे इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन मतलब मैं डेटा को प्रोसेस करूंगा, देन आई एम गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। कुछ चाहिए मुझे इससे, जिसको मैं अपने टास्क के लिए यूज कर सकूं, ठीक है। ऑटोमेट करना चाह रहा हूं मैं अपना टास्क में, आई डोंट वांट द ह्यूमन मैन पावर, नहीं चाहिए मुझे, ऑटोमेटिकली वो मेरा टास्क हो। तो आप कुछ ऐसी टेक्निक लगा दो इस डेटा पे जो वो ऑटोमेटिकली आंसर देना शुरू कर दे, हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं। तो उसके पीछे लगी होगी अल्गोरिदम, टेक्निक, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वो लगी उसके पीछे। तब अभी मुझे काम करना है डेटा पे। ओके, एंड तो भाई यदि मैं इंटरेस्टेड हूं, ओके, टू वर्क विद द डेटा, आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया डेटा इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो यू हैव टू बी समथिंग, शो योर इंटरेस्ट टुवर्ड, ओके यार मैं डेटा के ऊपर कैसे क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे सिखाया जा सकता है यहाँ पर, ओके क्या टेक्निक्स लगती होंगी इस पर, क्या प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। ओके, so I can work with some data, I can make some projects, some good quality projects, I can have a showcase to it, so that industry is gonna help me। ओके, कि यार आपको ये एक्सपर्टीज है और आप काम करें। ओके, अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो ले ऑफ कर रही हैं, वो एम्प्लॉयज को हटा रही हैं। कारण क्या है, अब आपको चाहे टेली कॉलिंग करनी हो, वेदर आपको कम्युनिकेट करना हो, तो चैटबॉट आ गए। तो चैटबॉट ही रिस्पॉन्स करते हैं, आपको किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। वहां पर चैटबॉट बना रखे उन्होंने, आप क्वेश्चन करो आंसर कर देंगे, वो ट्रेंड है इस काम को करने के लिए, ठीक है। चैट जीपीटी सब जानते हैं, वो मॉडल ट्रेंड है, ताकि वो टेक्स्ट, आप टेक्स्ट दो वो टेक्स्ट में रिप्लाई कर देगा आपको। तो आई डोंट नीड द पीपल। तो एआई सीखना जरूरी है, एआई सीखना जरूरी है, डेटा पे काम आना जरूरी है। तो आपका ट्रांजिशन करना है, मैंने आपको क्लियर बोल दिया कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग एज एन अपना बनाएं, इस पर उसको स्ट्रॉन्ग करें, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है, इसको स्ट्रॉन्ग करें। डेटा को समझना, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। क्या है मेरा डेटा, व्हाट वैल्यूज, व्हाट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन इट, क्या फीचर्स है उसमें, ओके क्या बता रहे हैं वो, सिग्निफिकेंस समझो उसका, व्हाट दे आर। तो ये सब मुझे इस फील्ड के अंदर आई नीड टू डू।
ओके, एक्सप्लोरेशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई नीड टू एक्सप्लोर माय डेटा एंड आई नीड टू ड्रॉ द इनसाइट्स। उस पर प्लॉट वगैरह बना लेना, ग्राफ बना लेना, ये हम नॉर्मल एक्सेल शीट पर करते भी थे। ठीक है, यहाँ पर हम पाइथन की मदद से, उसकी लाइब्रेरी की मदद से, जैसे कि मैट प्लॉटलिप और सी बॉन, उससे हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, प्लॉट्स करेंगे। क्यों? मुझे फीचर्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है, ट्रेंड समझना है मुझे, क्योंकि इंडस्ट्री ने आपसे बोला ना कि यह हमारा डेटा है, बताइए इस पे काम करके कि क्या हो रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस डेटा, व्हाट यू कैन डू विद दिस डेटा, कैन यू प्रिडिक्ट समथिंग ओवर दिस डेटा। ओके, ये हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द algorithms which आर प्रेजेंट इन इट, ये हमें पढ़ना है, आगे करेंगे इस पर भी बात, क्योंकि हमारा थर्ड मॉड्यूल है। ओके, वी आर गोइंग टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन ओवर मैथ्स। तो तभी अपने मॉड्यूल को मैंने क्या कर रखा है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज द पाइथन, वन इज द मैथ्स एंड वन इज योर मशीन लर्निंग। इसी तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। अब कुछ सजेशंस ये भी हैं कि देयर आर कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन कोर्सेरा, ईडीएक्स, डेटा कैम, एसेट्रा कोर्सेज हैं, बट वी वांट अ पर्सन हु कैन टीच अस फ्रॉम द बेसिक्स, who can teach us what we require, who should understand with me. These guys don't understand you what you are. They are going to serve you what they have. Okay, but we want something which we want. ठीक है, सबको अलग अलग खाना पसंद है भाई, एक जैसा नहीं। सबको एक जैसा खाना खिलाओगे तो ठीक है। तो मेरे लिए क्या है चैलेंज, तो ये है कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, व्हाट यू नीड एंड व्हाट इंडस्ट्री नीड, दोनों के रिक्वायरमेंट मुझे सेटिस्फाई करना है बीइंग एज अ टीचर, आपकी भी और इंडस्ट्री की भी, ताकि आपको मैं इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकूं, ताकि आपकी जॉब लगे इंडस्ट्री में। ठीक है, और जॉब एक मोटिव नहीं होता हमेशा, मोटिव ये है कि यू शुड हैव अ नॉलेज, इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑब्वियसली यू कैन टर्न द थिंग्स अप। सो ये आएगा इंटरेस्ट से, हाउ मच इंटरेस्ट यू आर हैविंग, कितना टाइम आप देते हैं इन सब चीजों के लिए, कोडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए अपने, हाउ मच यू गिव। ठीक है, यदि ये प्रॉपर चलेगा तो फिर आपका ट्रांजिशन, ये सब कहने की बातें हैं। ठीक है, इफ यू आर हैविंग गोल, एम्बिशन है, मोटिवेशन है आपको, मैं तो करते रहूंगा। ठीक है, आई ऑलवेज डू। सो आपने चैलेंज ले लिया अपना, तो आप आराम से ट्रांजिट करोगे, कोई इशू नहीं है। और यू विल बी वर्किंग ऑन सम रियल रियल प्रोजेक्ट्स। ओके, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे आप काम करोगे जहां पर आपको जो है सीखने को अच्छा और ज्यादा मिलेगा। एक्सपर्ट्स के साथ आप काम करोगे, मेरे साथ मैं अपने लाइव सेशन लेता भी हूँ, मैं उसमें आपको जोड़ूंगा, आपको पता चलेगा कि क्या होता है प्रोजेक्ट्स में। ओके, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करना है, बाकी मैं आपको अपडेटेड भी रखूंगा, सॉफ्ट स्किल्स भी आपकी अच्छी जो है वो, तो मैं मतलब आप फिर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, आई होप यू गाइस आर गुड। ओके, बट मेरा कंसर्न हमेशा नॉलेज पे रहता है, खासकर नॉलेज। इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज, यू कैन अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, आप उसको क्रैक कर सकते हो, स्किल्स आपके पास है। ठीक है, अब आपने कहा प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो यदि आपके पास है, आपको नॉलेज है उसका, यू कैन कम ऑन, गो अहेड। ओके, एंड डू द कोड, डू द प्रोग्रामिंग, करिए, आप उसको सॉल्व करिए, कैसे कर सकते हो आप। ओके, एंड एक्सपोजर ऑब्वियसली, वट एवर यू आर डूइंग, ओके, whether it's a small thing, whether it's a big thing, whatever, you have to showcase your work, what hard work you did। ओके, उसको आप बताइए। ठीक है, ताकि पता चले कि ठीक है, आपने ये एक्टिविटी करी है, आपको रिजल्ट्स आए हैं। ओके, चाहे आपका अचीवमेंट छोटा हो, चाहे आपका अचीवमेंट बड़ा हो। ओके, वो बड़ा छोटा अपने आप बनेगा वो अचीवमेंट, जब आप उसको, यू कैन पुट इट, रखेंगे आप सामने। ये आपको इतने एफर्ट्स करना है, और सिंसियरली डेडिकेशन के साथ यदि आप एफर्ट करेंगे, आप बना लोगे इस फील्ड में। अब बात ये है कि सर मार्केट में बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट तो वैसे ही घूम रहे हैं, देर आर मेनी डेटा साइंटिस्ट, क्लेम कर दिया उन्होंने कि वी आर डेटा साइंटिस्ट। तो आप हमको उनसे अलग कैसे करोगे आप? चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं हम आपकी बात। ठीक है सर, हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, वी आर एबल टू गिव टाइम ऑल्सो, हम टाइम भी दे देंगे सर। ठीक है, पढ़ाई करेंगे। यू आर गोइंग टू से अबाउट द पाइथन, सर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज ऑल द लाइब्रेरीज, और जो भी इसके कॉन्सेप्ट है सर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू इट। तो आप हमें अलग कैसे करोगे? देखिए क्या होता है, अलग कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से बनता है। ठीक है,
हाउ यू थिंक, योर थॉट प्रोसेस, ओके, वो आपको अलग बनाता है। ठीक है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कैसे करते हो, दैट मेक्स यू डिफरेंट। ऑलराइट। तो हम यदि किसी कोर्स के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसे जुड़े हैं जो हमें एक सोचने का नजरिया बताए, ओके, हमें समझाए कि ऐसा हो सकता है, तो हमें हमारी ट्यूनिंग करे वो, ओके, तो फिर शायद हो सकता है हमारी लाइफ में चेंज आए, और जो हमारा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, गोल है। तो आप एक कोर्स के रूप में नहीं जुड़े हो मुझसे, इतना नहीं है। ठीक है कि सर ये कोर्स है, ये कंप्लीट करवाना है आपको, आपको पढ़ाना है, ये नहीं होता। मेरा अलग ही चल रहा है। ठीक है, माई थॉट प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट आई डू टेक द सब्जेक्ट एंड आई डू टीच। ऑलरेडी मेरा बैच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब सब कुछ चल रहा है, सब एवरीथिंग इज गोइंग, आई डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ओके, एंड माई गोल इज कि आप लोगों को जो है, मुझे आपके जो रिक्वायरमेंट है वहां तक मुझे आपको पहुंचाना है, ये मेरा जो है। ठीक है, ताकि आप इस चीज को यूज कर सकें सिखाने के तौर पे, नॉट टू फिनिश द कोर्स, दैट्स नॉट द डील। ओके, तो आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर चुके हैं, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वट एवर यू आर डूइंग, आपको यदि अलग बनना है, अलग बनने के लिए देखिए, मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट है डेटा। यदि आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग है, ओके, आपको स्किल्स पता है, ओके, इफ यू आर able to apply them differently, okay, obviously you are able to survive, तो आप अपनी जॉब निकाल सकते हो, जॉब निकाल सकते हो। तो जिसको ये सब आएगा, प्लस वो नई प्रॉब्लम या नई अपॉर्चुनिटी, नई चैलेंजेस को सोच पाएगा, और इनको लेकर नई एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स बना पाएगा। ठीक है, ऑब्वियस, जस्ट बी रेडी टू फेस द चैलेंज एनी टाइम, एनी वेयर यू आर। ओके, सो मैं आपको इस कोर्स के अंदर ये बता रहा हूँ, पाइथन सिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ओके, वहां एक अप्रोच आपको बनानी है कि आपको कोई भी कैसा भी डेटा दे दिया जाए, यू शुड हैव द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, वो बिल्डअप करना है कि ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं आपको करके बताता हूँ। इसके अंदर राइट नाउ आपको काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली है। ओके, आपके पास कई टूल्स ऐसे हैं जो आपको विच विल मेक योर वर्क वेरी सिंपल, कर देंगे, वो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ओके, बट हाउ एवर अपना दिमाग तो लगाना है। ओके, इसको ये ध्यान रखें आप। तो आपके एफर्ट्स रहेंगे, हार्डवर्क रहेंगे, आपका डेडिकेशन रहेगा, आप ये काम कर पाओगे। ओके, तो यदि जॉब के लिए हमें इश्यूज आ रहा है, तो ये बात मान के चलिए, यू हैवंट शोन योर सेल्फ डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स, दैट्स द रीजन। ठीक है, सेम पैटर्न पे नहीं करना है काम। ओके, just try to identify the loopholes in the problem and just come up with some new idea, creativity के साथ आप आइए आगे। तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन आप क्रिएटिविटी के साथ नहीं आ रहे हैं, एक नई प्रॉब्लम के साथ नहीं आ रहे हैं, कोई एक आइडिया आपके पास ऐसा नहीं है जो दूसरों से अलग बता सके, आप जॉब कैसे निकालोगे। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, और मैं तो खैर हमारे प्रोजेक्ट्स में सारी चीज़ों में हम चीज़ों को सिखाते हैं, आप वहां पर देखोगे, इस चीज़ को फील करोगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन वाली बात जो मैं करना चाह रहा था। तो अब लोग क्या रोड मैप बताते हैं, रोड मैप, ये रोड मैप है डेटा साइंस का, ये रोड मैप है मशीन लर्निंग का। ठीक है, अच्छी बात है, हमें विजन तो देना ही पड़ता है ना। ओके, तो मेरा ये जो पूरा कोर्स ही एक रोड मैप की को लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है रोड मैप के अंदर, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस, व्हाट द पीपल से अबाउट द रोड मैप फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। वो कहते हैं कि सर देखिए क्या है, पहले मैथ्स पढ़ो, ठीक है, एंड पाइथन, ओके, साइमल्टेनियसली चलने दीजिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली या तो प्रोग्रामिंग कर लो, फिर मैथ्स कर लो, जो भी है चलाइए, आप ये दोनों करिए, पाइथन, प्रोग्रामिंग, मैथ्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन बिटवीन यू आर हैविंग, यदि आप डेटा साइंस की ही तरफ जा रहे हैं, फुल स्टैक, वो डेवलपर, वो डेटा साइंस वाला पूरा मैटर है, तो इन डेटा साइंस यू आर हैविंग सिक्वल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यानी डेटाबेस के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हो, डेटाबेसेस के साथ, यानी इफ मतलब उसमें क्वेरी आप फायर करते हैं, एंड यू
जस्ट जो भी काम कर चुके हैं इस पर वो जानते हैं बेटर कि हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड टू डिस्प्ले टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज कर रखा है एंड ऑल दीज थिंग्स वो सिक्वल के अंदर आता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आता है। ओके, स्पेशली रिलेटेड टू द डेटाबेसेस। इससे आगे बढ़े तो, तो हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, जैसे कि टैब्लू एंड पावर बीआई। टैब्लू, पावर बीआई। ओके, सो दोस पीपल हु आर डेटा एनालिटिक्स डोमेन के जो लोग होते हैं, इसमें भी कई डोमेन में अपने अपनी एक्सपर्टीज बोलते हैं। ओके, सो द पीपल हु आर डेटा एनालिटिक्स, ओके, उनको विजुअलाइजेशंस करता आता है। ये टैब्लू एंड पावर भी आर विजुअलाइजेशन टूल्स, यानी आपके पास डेटा है, आप प्लॉट्स बनाओगे। ठीक है, इन जनरल वी से डैशबोर्ड्स, वो डैशबोर्ड बनाते हैं। तो डैशबोर्ड एचआर, मतलब हम कहते हैं एचआर एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, कई प्रकार के मतलब डेटा होता है कंपनी का, तो उसके डैशबोर्ड बनाते हैं। तो क्या होता है, जब कंपनी की मीटिंग वीटिंग होती है ना, तो वो डैशबोर्ड में वो पूरी की पूरी समरी होती है वहां पर, कि देखिए भैया हमारी कंपनी ने इस ईयर में एंड इस ड्यूरेशन में इतनी इतनी ग्रोथ करी है। एक ये होता है, मान लो लाइन प्लॉट बना दिया उन्होंने, पाई पाई प्लॉट बना दिया उन्होंने, हिस्टोग्राम बना दिया उन्होंने, तो ऑल दीज आर ना डैशबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक पूरा एक बोर्ड की तरह उस पर सारे प्लॉट्स होते हैं। ओके, तो एक समरी होती है पूरी। तो डेटा एनालिटिक्स का काम ये रहता है, ये डैशबोर्ड वगैरह बना लेना। ओके, तो ये डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी आता है, उसको भी पता होता है ये काम, एनालिटिक्स वाला काम करना। ओके, हम अपने कोर्स के अंदर ये टैबलू और पावर भी है ये नहीं, हम पाइथन का यूज करेंगे टू मेक द विजुअलाइजेशंस। पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में इतनी लाइब्रेरीज हैं मेरे पास ऑलरेडी, जो कि सब प्लॉट प्लॉट बना देंगी, कोई इशू नहीं है। ओके, और विजुअल्स का क्या मतलब है, व्हाई वी आर मेकिंग द विजुअल्स, क्योंकि क्या होता है, इफ यू आर अवेलेबल विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट और न्यूमेरिकल फॉर्मेट, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो द बेटर थिंग इज टू शो देम इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, दिखा दो। ओके, प्लॉट्स दिखा दो, ग्राफ दिखा दो, उससे पता चल जाएगा कि आपकी स्टोरी सक्सेस क्या है भाई, कम है ज्यादा है, कैसा कंपनी ग्रो कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ये डैशबोर्ड्स का मैटर हो। ओके, फाइन। तो टैब्लू, पावर बीआई, इनमें से कोई एक चाहे तो सीख सकते हैं, या तो टैब्लू करें, पावर पावर बीआई अच्छा चल रहा है। ओके, तो इस पे जो भी फ्लेक्सिबल हो तो उस पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सीख सकते हैं, जस्ट बीइंग एज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट। हम जब आगे बढ़ेंगे डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो इससे आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास एमएल आएगी, मशीन लर्निंग, जिसमें हमारे पास होंगी अल्गोरिदम्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई अल्गोरिदम्स ओवर योर डेटा। ओके, टू गिव सम प्रिडिक्शंस देने के लिए। और यही अल्गोरिदम्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इसमें मॉडल्स होते हैं एक्चुअली, मॉडल्स that we say is machine learning models. Okay, we can save these models and we can deploy these models over internet। ये कर सकते हैं हम, ताकि मेरा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेट हो जाएगा। वंस वंस यू ट्रेन योर मॉडल विद द डेटा, यू कैन सेव दैट ट्रेन मॉडल एंड यू कैन डिप्लॉय इट। ओके, यही बना देता है किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटेड, जहां पर मुझे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नाउ तो ये क्या हो गया, मशीन लर्निंग आपके विजुअलाइजेशंस के बाद आ गया। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न द algorithms here in this particular, that will be our module number 3। ओके, सारी algorithms कवर करना है हमें, मैथ्स उनके पीछे क्या है, उनका एप्लीकेशंस देखना है हमें बाय सम गुड प्रोजेक्ट्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। ओके, बाकी और भी फर्दर स्टेप्स होती हैं आगे। एक बार आपका मॉडल हो गया, डिप्लॉय हो गया, उसका मेंटेनेंस होता है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स। फाइन, तो इतना हमें जो है ये रोड मैप हो गया है। कोई बोले क्या होता है, तो ये भैया ऐसा होता है रोड मैप। ठीक है, ये सब चीज़ें सीखते चले आएंगे। ओके, भाई अभी जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ आई वॉज टेलिंग यू, ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आई। तो जस्ट आई टोल्ड यू ना, वंस यू ट्रेन योर मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, डिप्लॉयड, तो ऑटोमेट हो गया, यही एआई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है सर, हम तो ह्यूमंस हैं सर, तो हमारे उसमें तो नेचुरल इंटेलिजेंस है सर।
ठीक है भाई। तो आप में नेचुरल था तभी तो मशीन का हमने आर्टिफिशियल बोला, मशीन को थोड़ी ना नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो सर इंटेलिजेंस क्या होता है सर? व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंस सर? हम हाउ वी कैन से दैट दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट और वो डम्ब है, ऐसा कैसे बोल दिया हमने? इंटेलिजेंस का मतलब ये है, जहां तक मैं समझता हूं, देखिए क्या है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली, हाउ मच इफेक्टिवली इन क्विक अमाउंट ऑफ टाइम सॉल्व कर लिया, ओके सॉल्व इट, देन वी आर said to be intelligent. And if we are unable to solve a problem, or if you are solving problem, it will take a time, something like that. Okay, because intelligence is been measured according to the way or the approach you define to do a particular task. कोई किसी काम को in different way करता है, it will take a time. Some people do the same task in a quick way with least resources. Then we will say that okay, yes, you are an intelligent person. How did you do that? How you solve that particular problem? अब हम बोल रहे हैं मशीन, ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स मशीन इज गोइंग टू डू द टास्क, है ना? ये तो हो रहा है ना, मशीन से टास्क ही तो करवाने। दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं अभी जब से आपको इंटेलिजेंस भी टास्क के बेसिस पे तो बोल रहा हूं। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हु इज गोइंग टू से यू इंटेलिजेंट? कुछ कर ही नहीं रहे हो आप। ओके, तो भाई बात ये हुई कि सर एआई, मैं माय सिंपल डेफिनेशन रिलेटेड टू एआई इज मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट is AI. And to make a machine intelligent, I want a machine to learn. Without learning, you can't become intelligent, because at least you should have an idea, no? You should have a knowledge. Then only you can apply. Without knowledge, without idea, without any concepts, how you can? ठीक है। तो इंटेलिजेंस में थिंकिंग डिफरेंट भी होता है। ओके, थिंक डिफरेंटली, because everyone is seeing this world by their eyes, but the way of seeing might be different. Okay, that's what make a person intelligent and different from others. तो भाई हम क्या करेंगे? यहाँ मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है सर। सर मशीन तो मशीन है सर, वो कहाँ है कि इंटेलिजेंट बन गई, बनेगी? when you are going to feed data to the machine, and you are going to train train it using algorithms. What is algorithm? Step by step solution of a particular problem is said to be algorithm. So when you are going to do this task over a machine and train it, this is a training process. Feeding data to the machine, applying algorithms, that is a training process. Your machine will become intelligent. Then you can use this trained machine to perform the task, the kind of data which you have feeded into it. For example, chat gpt is a trained model, trained over huge amount of text. Okay, so I can feed text into chat gpt, it will return me a text. Okay, this is the technique. All right, so all these things now we are going to see in this particular course. That's a way ahead approach. Okay, so we should learn how we can understand the data, how we can explore the insights which are present in the data, how we can perform the visualizations from this particular data. We can make a visuals, we can understand the relationship between the features which are present in the data, and how we are going to make such model. कैसे बनाएंगे सर, क्या होगा इसमें?
ये सब स्टेप्स हैं. धीरे धीरे, slowly slowly, we will move ahead and we'll learn all these things, how to approach. Okay. Now, as I told, our module number one is Python. Python is an implementation language. Okay, Python is a programming language. So, sir, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज क्या होती है सर? अरे लैंग्वेज इज अ वे by the help of which you can communicate. I am right now I'm communicating to you in English. So English is a language. Okay. So if I want to communicate with a machine, तो भाई मशीन तो इंग्लिश इंग्लिश तो समझती नहीं. मशीन तो 0 1 समझती है. वोल्टेज समझ, वो तुम्हारी इंग्लिश इंग्लिश नहीं समझती. So how I'm going to communicate with the machine, sir? For that, na, I require programming language. Okay, programming language in which I can do code in my language that will convert into machine language, which is 0 and 1. ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मेरी बात मशीन समझ जाएगी, एंड विच कैन रिटर्न द आउटपुट इन माई लैंग्वेज अगेन. तो मैं समझ जाऊंगा, तो भाई आप समझ जाओ और मैं समझ जाऊं, दोनों ही समझ जाए. यही हम चाहते हैं, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही करती है. You write the code in your language, that is English, that will be translated into machine language. Then you are revert, the output is again get back to you in your language, English. It's a complete process. Okay. तो भाई हमने यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग को पकड़ा है सीखने के लिए. पाइथन, तो पाइथन पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉलेशन. So how to install Python? See, there are, I know that you guys are very much aware of all these things, and you are already working in this programming language, Python. It's a simple programming language. Okay, there are various ways of using the Python programming. How I do approach, okay, related to the Python is, I okay, I first download Python. There is an official website. You can see python.org. Python.org. Okay, so I am telling you my way how to use the Python. What I'm going to do is, first of all, I am going to make I am going to make a folder. Okay, just remember these steps, though they are coming in record also. Okay, I will share, but remember what you are going to do. You do one thing. You go to your C drive. Okay, go to your C drive. In C drive, make a new folder. New folder. Just make it, and in this new folder, just name it as Python. See, I am already having a Python folder in my C drive, so I'm changing my name, but you put a name Python. Okay, I'm putting Python 1. Okay, something like this. Okay, done, created. So my Python 1, this folder is created in C drive. Now what I'm going to do here is, I'm going to downloads in Python org, this website Python downloads, and I can download any of the version from the Python which I believe it should be a stable version. Okay, there should be a stable version. That means all the errors, all the bugs are being fixed. There are no more errors are present in it. Okay, so I'm going to download. See, you can in this website now, in the download section now, you can see all these versions are being present. Okay, here they are. Python 3.12.1. Right now we are having Python version 3. Okay, third version 3.x. Okay, previously version 2 was there, so version 2 is now over. Okay, we are having all the versions which are related to 3, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.7, 3.8, 3.9, 10, 11, 12, something. So all are related to version 3. Okay, here also in the website you can see 3.12.1, that has been released on December 8, 2023.
Okay, so that is the latest version. We can download it. Latest version, you can go, you can put on to the download. Okay, download, and according to your operating system, whatever you are having. Okay, my system is Windows 64-bit machine. Mine is Windows 64-bit machine. Okay, so check the compatibility. Check the compatibility, whatever you are having according to your machine. You can download Windows installer 64-bit. Okay, so here it is. It's now present in downloads. Okay, here it is. Python 64 exe. Okay, here it is. Fine. Once you are going to run this, once you are going to run this, here it will ask. Here it will ask where to install. Where to install. I hope you are listening to me carefully because this is an important step. Okay, where to install. When this pop-up window comes to you, na, you do one thing. Click on here also, add python.exe to path and use admin privileges. Both should be clicked. Okay. Here it is giving me already a path. If I click on this, na, it will install into this path. But you do not have to do such thing. I have to do custom installation. आई नीड टू डू कस्टम इंस्टॉलेशन. यानी मुझे उस डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल करवाना है जिसमें मैं चाहता हूं. तो आई हैव क्रिएटेड पाइथन फोल्डर, पाइथन डायरेक्टरी इन सी ड्राइव. तो मुझे इस पाइथन को उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करवाना है. क्या होता है कि द पीपल डोंट लुक कि व्हाट इज द पाथ विच इज कमिंग फॉर द इंस्टॉलेशन एंड दे डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, तो वो उधर उस डायरेक्टरी में चला जाता है, लंबा चौड़ा होता है. मिस्टेक है वो, गलती है, ऐसा मत करो. इंस्टॉल द पाइथन इन योर कस्टम डायरेक्टरी. सो इन सी पाइथन इंस्टॉल. सो यहां पर करिए नेक्स्ट. नेक्स्ट करिए. प्री कम सबको टिक कर दो, आप सबको टिक कर दो. और यहां पर ये जो आ रहा है कस्टम इंस्टॉल लोकेशन, यहां पर इसको ब्राउज करना. ब्राउज. ब्राउज एयर एंड गेट टू योर पाथ. वहां पर आप पहुंचिए. सी ड्राइव में मैंने पाइथन के नाम से बनाया था. हाँ, हियर इट इज, पाइथन के नाम से. ओके, यहां पर ओके कर देना. इंस्टॉल हो जाएगा. अब मैं ओके नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा. ऑलरेडी है. बट टू टीच यू हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इट, अब आप इसको ओके करके नेक्स्ट वो इंस्टॉल कर लीजिए उसको पूरा. ओके, ये कर लीजिए. देर आर अदर IDs also. Integrated development environment. You might be using Anaconda. You might be using PyCharm. You might be using Google Colab. You might be using Kaggle. Okay, there are various platforms over which you can do the Python code. It depends upon your expertise, but this is something which I use on my local machine. I use Jupyter Notebook. Okay, वो बता रहा हूँ. पहला Python इंस्टॉल कर लेंगे ऐसे. ओके, ये आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस फोल्डर में Python आपकी इंस्टॉल हो जाएगी. उसके बाद क्या करना है? आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये हो गया, आपका इंस्टॉल हो गया. आई एम कैंसलिंग दिस थिंग. ओके, आई एम कैंसलिंग दिस थिंग, मुझे नहीं चाहिए. इंस्टॉल हो गया. इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आई वांट टू इंस्टॉल नोटबुक. ओके, जुपिटर नोटबुक मुझे इंस्टॉल करनी है. over which I want a platform now over which I want to do the code. Okay, so my notebook look like this. This is my Jupyter notebook. Okay, and I want to code it here. Okay, so from where I'm going to get the notebook? From where? So you do one thing. इंस्टॉल कर लिया आपने पाइथन, उस फोल्डर में आ गया पाइथन, पूरा इंस्टॉलेशन हो गया. ओके, उसके बाद एक काम करिएगा, आप सर्च पे जाइए. ऑन सर्च यहां पर आप ओपन करिए विंडोज पावरशेल. ओपन विंडोज पावरशेल. ठीक है, करा. विंडोज पावरशेल ओपन ओपन करने के बाद यू डू वन थिंग. गो टू दैट फोल्डर वेयर पाइथन इज इंस्टॉल्ड.
Okay, so Python is installed in, just use cd dot dot cd dot dot cd python 1. This was my folder actually. Reach to this particular folder where your Python is installed. यहाँ पर आपको आना है, इस लोकेशन पे आना है, इस लोकेशन पर आपको आना पड़ेगा. Okay. After coming to this location, you have to do one thing. Pip install notebook. This is the command you have to write. और फिर enter मारना. Okay, just press enter. So it will install this Jupyter notebook in this particular folder. Okay, your installation will be completed. Pip is Python installer package. Package installer. ये command है. Pip Python package installer. So whatever be the package, whatever be the library, whatever be the module you want to install, na, you can install with pip Python package installer. Okay, that's what you can do. So after your notebook is installed, do one thing. Then you need to write. Then you need to write Jupyter notebook. That's what you have to write and press enter. इसको आप जब इंटर प्रेस कर दोगे, यू विल गेट दिस. इस तरीके से आपको नोटबुक ओपन हो जाएगा. Okay, you will be seeing a new notebook like this after pressing enter. Okay, आपको होम पेज आ जाएगा. दिस इज द होम पेज. ओके, यू गेट अ होम पेज. दिस इज जुपिटर नोटबुक होम पेज. यहां से आप न्यू करके यू कैन मेक अ न्यू पाइथन. ये ऐसा करके यू विल बी गेटिंग योर notebook. Here you can perform the coding. Okay, these are the cells where you can do the code. Okay, तो ये आपका अब you it's your comfort zone whether you want to do on Jupyter notebook. I do, मैं इसी पे ही करता हूँ कोड. और फिर जब मुझे रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट रहता है तो आई डू कोड ऑन केगल एंड ऑन गूगल कोलैब. वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ओके, बाकी मैं नोटबुक पे करता हूँ. नेवर यूज पाइचार्म एनाकोंडा, मैं नहीं करता, मुझे इसी में ठीक लगता है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इन दिस वे एंड यू कैन परफॉर्म द कोडिंग. ऑलराइट, तो भैया पाइथन ऐसे इंस्टॉल होता है ये तो पता चला. वो पाइथन, वो नाम ही पाइथन है. वो सर्कस के नाम पे था एक्चुअली. पाइथन वो स्नेक के नाम पे नहीं था. पाइथन द नेम, इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग टू यू, that's what we are going to learn. तो पाइथन वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. 1991 के अंदर रिलीज हुई थी. अब इतने सारे वर्जन्स यू कैन सी. वी आर हैविंग मेनी वर्जन्स रिलेटेड टू द पाइथन. इट्स रिलीज इन 1991. Okay, by Guido van Rossum. It's created by this person. Okay, and it's used to perform many of the tasks. ठीक है, अब एप्लीकेशंस की बात करें तो हर जगह वेब एप्लीकेशन, योर मशीन लर्निंग एंड वेरियस अदर, सब कुछ हर जगह पाइथन का यूज हो रहा है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सब जगह पाइथन इज यूज. ओके, तो भाई ये पाइथन लैंग्वेज है कैसी? व्हाट एक्चुअली इट इज, क्या करती है, कैसे हो गया ये? तो पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. अब सर ये कौन सी नई समस्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? तो देखिए बता रहे हैं आपको क्या होता है. यू आर हैविंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which can be using the techniques as one is interpreted, one is compiled, and one is the combination of both, interpreted plus compile. Programming language uses these techniques. क्यों? अरे भाई, I already told what is a programming language. It's a interface, it's a way to communicate with the machine. मुझे मशीन से बात करनी तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. ओके, तो व्हेन आई एम गोइंग टू गिव समथिंग एन इनपुट टू द
मशीन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको वो उसका आकलन कैसे करेगा वो? हाउ हाउ इट्स गोइंग टू अंडरस्टैंड? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो लाइन बाय लाइन चेक करती है कोड को. Okay, for example, I have written something. My name is Nirmal. I am your Python teacher. We will learn ML. तो ऐसे, for example, you are having so many lines in your code. So interpreted languages are those languages which are going to check line by line. First, it's going to check this line whether it is correct or not. If this line is correct, it will go to the next line. Then it will check whether it is correct or not. If it is correct, then it will go to the next line. If there is any error, error can be syntax error, semantic error, semantic error, syntax or semantic. These are the two kinds of errors which may be present in your code. Syntax means you are using wrong components instances in your programming language. कहीं का कुछ लगा दिया, ठीक है. तो सिंटेक्स तो यही होता है ना, एक वो फॉर्मेट होता है. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हैविंग देयर ओन सिंटेक्स ऑफ डूइंग द कोड. तो यदि गलत यूज करोगे तो एरर आएगा. तो सिंटेक्स है. सिमेंटिक इज मीनिंग. सिमेंटिक का मतलब का मतलब ही होता है ये. सिमेंटिक मीन्स मीनिंग. ओके, सो इफ यू आर डूइंग अ कोड, यू शुड डू इट इन अ मीनिंगफुल. उसको मीनिंगफुल कोडिंग करनी है आपको. You have to do a meaningful code. You do not have to do a code just like with no sense. Okay, you have to do a meaningful code. So these two kind of error which may appear. तो interpreter क्या करता है? Interpreter is going to check line by line, और कहीं पे एरर आ गया तो बस वो वहीं रुक जाएगा. वो बोलेगा भाई पहले इसको सही करो, फिर मैं आगे जाऊंगा. Then it's going to check the next lines. That is the concept which is used in interpreter. In case of compiler, that is the next way. कंपाइलर क्या करता है? पूरा की पूरा कोड एक ही बार में ले लेता है. कंप्लीट कोड इट विल टेक इन वंस. इन इंटरप्रेटर वी आर चेकिंग लाइन बाय लाइन, बट इन केस ऑफ कंपाइलर इट विल टेक द कंप्लीट कोड. पूरा कोड एक ही बार में उठाएगा वो. ओके, फिर उसके बाद यहां पर होती है पार्सिंग. पार्सिंग पार्सिंग में भी that means there are phases. Actually there are phases of compiler. ये होते हैं. That means वो पूरे कोड को ब्रेक करता है. ब्रेकिंग ही पार्सिंग होती है. ब्रेक करता है, पूरे कोड को ब्रेक करेगा वो कई कंपोनेंट्स में, कई पार्ट्स में, और फिर उस पर वो चेक लगाएगा whether you have written correct or not, syntax and semantically. Okay, so it will take the complete code at once and it will break the codes into different parts. These are called as tokens. टोकनाइजेशन करेगा, पार्सिंग करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा. ओके, एंड सूडो कोड रहता है वो. ठीक है, तो ऐसे करके वो चेक करेगा पूरा, देखिएगा कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है. फिर से कंपाइलेशन प्रोसेस. फ्यू लैंग्वेजेस uses both the technique, interpretation also and compilation also. For example, जावा दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करता है. ओके, वो इंटरप्रेटेड भी करता है और कंपाइल भी करता है, दोनों काम करता है. तो जावा में हमारा होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एंड वी आर हैविंग JIT, just in time compiler, compilation. These are the two components which are present in Java that will perform both the techniques, interpretation also and compilation also. दोनों काम करते हैं. पाइथन की यदि हम बात करें स्पेशली, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न द पाइथन, तो पाइथन जो होता है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है.
इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन चेक करने वाली. आई एम गोइंग टू चेक द थिंग्स लाइन बाय लाइन in Python. Okay, which means the source code of Python program is converted into bytecode that is then executed by the Python virtual machine. ठीक है. तो आपका जो सोर्स कोड किसको बोलते हैं? टू whom आई एम गोइंग टू कॉल, जो आपने अंग्रेजी में लिखा ना, वो पूरा जो प्रोग्राम आप अंग्रेजी में लिखते हो इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड. ओके, वट एवर यू आर राइटिंग. ओके, सो इफ आई हैव बीन राइटिंग हियर दिस थिंग प्रिंट पाइथन, ये सोर्स कोड है. तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ना, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में. ओके, बाइट. बाइट क्या होते हैं? व्हाट इज बाइट? सोर्स कोड टू बाइट कोड. बाइट कोड, बाइट भैया वो 0 1 होता है. बाइट इज 0 and 1. ओके, फाइन. सो इट विल बी डूइंग द कन्वर्जन बाइट कोड 0 1. फिर क्या करेगा पाइथन? व्हाट नेक्स्ट द पाइथन इज गोइंग टू डू? पाइथन is different from major compiled languages such as C and C++, as Python code is not require anything else. Python perform the interpretation. Okay, तो Python interpreted language. Python का coding is fast to develop as it does not require compilation. कंपाइलेशन नहीं होता. कंपाइलेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि पूरा की पूरा कोड एक ही बार में दे दो, सबमिट कर दो, और फिर वो उसको क्या करेगा? वेरियस स्टेप्स इट्स गोइंग टू यूज इट. It's going to break the complete code and then it's going to rectify whether there are errors or not. तो जैसे कंपाइलर की बात करें तो C++, these are the programming languages which perform compilation. उनमें पूरा कोड बनता है, पूरा के पूरा कोड एक ही बार में सबमिट होता है. आप देखें यहां पर भी, व्हेन आई एम गोइंग टू मेक अ कोड इन पाइथन, तो मैं पूरा पूरा नहीं, मैं I can run this portion of the code. If it is correct, I can go ahead. Then I can run this code. Then if it is correct, I can run this code. If it is correct, I can run this code. So मैं स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर रन कर सकता हूँ पाइथन का. ऐसा नहीं कि मुझे पूरा के पूरा बना के एक ही बार में उठा के उसको देना है और उसको बोलना नाउ चेक चेक कर भाई. तो यदि आप भैया किसी को पूरा बंडल दे दोगे चेक करने का, बोले कि भैया तू चेक कर, वो वैसे ही परेशान हो जाए. हाँ, यदि आप उसको छोटा छोटा कुछ, आपको भी मैं एक साथ तो पूरा नहीं पढ़ा सकता ना. आई विल बी टेकिंग टाइम टू टीच यू in small units. That's what Python do. Okay, so आप ऐसे उसको पार्ट्स पे देंगे, उसको इंटरप्रेट करेगा, वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. सो Python uses interpretation process. Okay, Python code is not fast in execution. डेवलपमेंट में तो फास्ट है, एग्जीक्यूशन में नहीं. C++ ये फास्ट है. पाइथन कोड रन्स अ लिटिल स्लोअर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लैंग्वेज C++. थोड़ा सा स्लो चलता है. तो डेवलपमेंट इज इजी. ये जो लैंग्वेजेस है ना, C++, जावा, ये टफ पढ़ते हैं, इनकी कोडिंग भी टफ होती है. मेरी पाइथन इजी है. इट्स वेरी इजी लैंग्वेज. आप सभी लोग अभी इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे 1 1.5 महीने के अंदर कि यार ये तो मजा आ गया. ठीक है, पाइथन इज इजी लैंग्वेज. वन लाइन में ही आप काफी कुछ काम करो. अभी तो यदि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, इफ आई नीड टू टाइप हेलो वर्ल्ड, सो आई एम गोइंग टू से प्रिंट कोटेशन में हेलो वर्ल्ड. ओके, और उसको रन कर दिया मैंने. देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. यदि यही प्रोग्राम मुझे C++ में जावा में बनाना पड़ता, तो यार मुझे बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है अभी. क्योंकि if I want to print something in C++, I need to include the libraries. Hash include stdio.h, hash include conio.h, void main, फिर clr scr, then I need to write printf, फिर मैं इसमें लिखता हेलो वर्ल्ड, और फिर मैं यहां पर लिखता गेट ch, और फिर इसको खत्म करता. सो जस्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड आई नीड टू राइट दिस कंप्लीट. इतना सारा लिखना पड़ता मुझे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और पाइथन में व्हाट आई डिड, जस्ट आई रिटन प्रिंट हेलो वर्ल्ड.
प्रिंट कर दिया उन्होंने. So Python is simple. It will take a bit time for its interpretation than the conventional languages. Okay. So there are many more things to say related. मैं बताते भी जाऊंगा, आपको कोडिंग भी सिखाते जाऊंगा side by side. This is how we are going to do. So what are the applications of Python? Okay, where why we are going to use the Python here in this data science and machine learning. आपको भी समझ में आ गया होगा कि why we are going to use it. One liner है, easy है, आपकी Python coding interpreted है. Okay, तो in data science and machine learning projects ना I want interpretation only. Okay, line by line मैं चाहता हूँ अपने कोड को रन करना. That's the reason. Okay, so I will be using Python. So I will explain the relevant nodes related to it, and we'll be doing the coding part. Okay, ये हम सीखते चले जाएंगे Python. Okay, any doubt, please let me know. Anything you want to say, please let me know. Yes, any doubts? Okay, if you don't have any doubts, fine.